So happy Independence Day to all. Bharat Mata ki jai. And now we are starting our new topic today, that is stereoisomerism. Stereoisomerism, second type of isomerism in coordination compounds, right? पहला हमने किया था structural isomerism, now it is stereoisomerism. We already हमने किया हुआ है ये चीज कि isomerism जो है in coordination compounds, it is of two types. Isomerism in coordination compounds is of two types. One is structural isomerism और दूसरा है stereoisomerism. Structural isomerism and second is stereoisomerism. Right? अब स्ट्रक्चरल के चार टाइप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने कहा भी था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन coordination compounds having same molecular formula but different structures and hence different properties are known as structural isomers. The phenomenon of existence of structural isomers is known as structural isomerism. Now stereoisomerism पे हमें definition already की हुई है. So what is stereoisomerism? Now second type of isomerism. Already explained, stereoisomerism में compounds having same molecular formula but different arrangement of ligands in space. Having same molecular formula. This is the criteria for every type of, each type of isomerism. Same molecular formula. ये आपको याद रखना, molecular formula totality में same होना चाहिए. Compounds having same molecular formula but different arrangement and different arrangement of ligands in space. Arrangement of ligands in space. वो क्या है arrangement of ligands in space, ये आपको अभी आगे पता चलेगा. वैसे ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन भी किया है. इनको हम बोलते हैं stereoisomers are known as stereoisomers, and this phenomenon of existence of stereoisomers is known as stereoisomerism. This process, this phenomenon of existence of stereoisomers is known as stereoisomerism, right? Now stereoisomerism is further of two types. ये मैंने कहा भी था, stereoisomerism in coordination compounds is of two types. Stereoisomerism in coordination compounds is of two types. पहला type है geometrical isomerism और दूसरा type है optical isomerism. Geometrical isomerism and second type is optical isomerism. Right? We are studying stereoisomerism, and stereoisomerism जो है, it does exist in coordination compounds. In this type of isomerism, compounds are having same molecular formula but different arrangement of ligands in space. Now there are two types, geometrical isomerism and optical isomerism. Now today we will study geometrical isomerism in detail, right? So geometrical isomerism है क्या? But geometrical isomerism हमने क्लास 11th में भी किया था. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, अल्कीन्स में, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स में ज्योमेट्रिकल होता है. यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करना है, राइट?
देखो बेटा इसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सेम रूल तो सेम ही है कि इसमें जो आइसोमर्स है दे डिफर in the relative position of in this type of isomers is in this type of isomerism isomers differ, this line is very important, differ in the relative position of in their relative positions with respect to each other in their relative positions. Around central atom or ion, central atom / ion. अगर इस वाले टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी, सिस ट्रांस आइसोमेर। अब ये रिलेटिव पोजीशन से क्या मतलब है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब रिलेटिव पोजीशन से मतलब ये है कि एडजेसेंट भी सिमिलर ग्रुप्स एडजेसेंट हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं अराउंड सेंट्रल एटम। तो जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं दो ही है, since it is known as cis trans isomerism, and these isomers differ in their relative positions या in the relative positions around each other। और इसमें दो आइसोमर्स है, एक है सिस आइसोमर और एक है ट्रांस आइसोमर। सिस आइसोमर में जो सिमिलर लिजेंड्स होते हैं, सिमिलर लिजेंड्स, जैसे उधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा था सिमिलर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, यहां ऐसा नहीं है। यहां सिमिलर लिजेंड्स जो है, सिमिलर लिजेंड्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर, साथ साथ, और प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर, एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ होते हैं सिमिलर लिजेंड्स, उसी को कहते हैं सिस आइसोमर। When similar legends are present adjacent to each other, we call it cis। अब ये क्या है, ये हम एग्जांपल से समझाऊंगा अभी, पहले डेफिनेशन पार्ट। और ट्रांस आइसोमर में क्या होगा? Similar legends are present opposite to each other around central atom। Again repeat, similar legend, जो दो सिमिलर लेजेंड्स होनी चाहिए तभी ये पॉसिबिलिटी है। अगर सारे डिफरेंट है तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बताना बड़ा मुश्किल है। So similar legends are present opposite to each other, are present opposite to each other। अगर मान लीजिए, ध्यान से देख लो बेटा, अगर क्वेश्चन वहां पर आएगा opposite to each other, आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन कर लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, तो सिंपल आप लिखेंगे यही चीज। This type of isomerism, in this type of isomerism, isomers differ in their relative positions around central metal atom. In this type of isomerism is also known as cis trans isomerism, and there are two isomers, cis isomer and trans isomer. Cis isomers are similar ligands are present adjacent to each other around central atom, and trans isomers, in these isomers similar ligands are present opposite to each other around central atom। और एक एग्जांपल दे देंगे इन केस अगर ये आ जाएगा, आल्दो मैं बहुत एग्जांपल्स अभी दे दूंगा, वो एडिशनल है, बट अगर क्वेश्चन आएगा समझ आना चाहिए कि अगर स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन कर लो तो इतना काफी है। और एक एग्जांपल देनी है, कोई भी एग्जांपल दे देंगे हम, जैसे स्क्वायर। देखो बेटा क्या होता है, स्क्वायर में होगा ये, या स्क्वायर प्लेनर में होगा, या ऑक्टाहेड्रल में ये पॉसिबल होता है, ये भी आगे पता चलेगा। सपोज मैं आपको सिंपल बताता हूँ अभी, M is the central atom, just for explanation point of view, M central atom में ले रहा हूँ, स्क्वायर कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है, अगर हम आउटर लाइन दे देंगे भी समझने के लिए, इस इमेजिनरी लाइन, मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन इसको नोट करना है आपको, सपोज कोई लेजेंड लेता हूं मैं, ए है, ए इज ए लेजेंड, यहां पर ए होगा, यहाँ बी है, यहाँ बी लेजेंड है, करेक्ट।
इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा ब्रैकेट लिखना है, एक छोटा सा ब्रैकेट यहाँ लिख सकते हैं। अगर चार्ज होती तो ऊपर चार्ज, नहीं होती तो ऐसे। एंड इसी कॉम्प्लेक्स का अब मैं दूसरा बता रहा हूं जिसको हम ट्रांस बोलेंगे। पहला वाला सिस है, दूसरा ट्रांस है। सेंट्रल एटम इसमें एम है, कोई भी मेटल, जस्ट जनरल दे रहा हूं मैं, समझाता हूं ये। यहाँ ए है, यहाँ ए है लिजेंड, यहाँ बी है, यहाँ बी है लिजेंड, यहाँ पर छोटा सा ब्रैकेट दे सकते हैं। तो पहले वाले में अगर हम देखेंगे सिमिलर लिजेंड जो है ए एंड ए और ए साथ साथ है, इसको हम बोलेंगे सिस आइसोमर। यहाँ बी बी साथ साथ है और यहाँ ए और बी अपोजिट है, इसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। राइट। ये मैंने सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लेट अस सपोज मैं एक एग्जांपल दे ही देते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लेता हूं मैं कोई, कॉपर NH3 होल ट्वाइस Cl2, ये एक कॉम्प्लेक्स है। अभी आपको याद रखना है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम है डाइअमाइन डाइक्लोरिडो कॉपर सेकंड, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, न्यूट्रल है ये। अब इसके दो बनाने हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। कॉपर इन द सेंटर, 1 2 3 और 4, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, यहाँ Cl, यहाँ पर Cl, कोई चार्ज नहीं। ये सिस है। देखो बेटा, इसका नाम अगर हम देखेंगे, इसका नाम, पूरा नाम अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे, इट इज सिस और फिर पूरा नाम है डाइअमाइन और डाइक्लोरिडो कॉपर सेकंड। अगर आप पूरा नाम नहीं भी लिखेंगे, अगर लिखेंगे सपोज डाइअमाइन डबल एम डाइक्लोरिडो कॉपर ब्रैकेट में सेकंड, 1 1 2 ऑक्सीजन स्टेट प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट, या आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं सिस आइसोमर, और इसी का ट्रांस आइसोमर बनाता हूं। स्क्वायर बनाएंगे जस्ट दिखाने के लिए, स्क्वायर प्लेनर है। अभी जरूर एक क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि हमें कैसे पता चला ये स्क्वायर ही है, अभी तो याद रख लो, अभी आगे कराऊंगा। यहाँ अमोनिया और यहाँ पर भी अमोनिया, यहाँ Cl और अपोजिट में भी Cl, छोटा सा ब्रैकेट यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करता टोटल। इसको मैं लिखूंगा नाम ट्रांस आइसोमर, ट्रांस और पूरा नाम डाइअमाइन डाइक्लोरिडो कॉपर सेकंड, या शॉर्टकट में ट्रांस आइसोमर। एक सिस आइसोमर, एक ट्रांस आइसोमर। ये अगर मान लीजिए लेट अस सपोज क्वेश्चन आया वहां पर, एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इतना काफी है। आइसोमर्स डिफर इन देयर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स डिफर इन देयर रिलेटिव पोजीशंस अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म आल्सो नोन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस आइसोमर में सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू ईच अदर, ट्रांस आइसोमर सिमिलर लिगेंड्स आर प्रेजेंट अपोजिट टू ईच अदर, राइट। और फिर मैंने एक एग्जांपल दे दी, एक ही एग्जांपल, आपको ये जरूरी नहीं कि 2-4 एग्जांपल देनी है, लेकिन दिस वाज व्हाट एक्सप्लेन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब मैं अलग से सिखा रहा हूं इसका एग्जांपल, थोड़ा सा पता चलेगा आपको। देखो अब मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, जो ये स्टेट बोर्ड में अगर आएगा तो इतना ही आएगा, सीबीएसई में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है हमें एग्जांपल्स में। अब जो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, पहले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का करेंगे। याद रहे, जब आप कॉपी पर लिखेंगे इतना पहले लिखेंगे ये 2 एग्जांपल, और फिर एक लाइन डाल के फिर नेक्स्ट लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
की एग्जांपल्स नाउ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जांपल्स है ये। पहला मैं लेता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कॉम्प्लेक्सेस। पहला चीज इसमें complexes having coordination number 4. Having coordination number 4. This is important. देख लो बेटा, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमने किया था वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैंने कहा था व्हेन देयर इज कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स होते हैं। बता सकते हो क्या क्या 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कौन कौन सा टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो सकता है 4 में? एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया था, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और दूसरा जो है सेकंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, राइट। पहला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब मुझे बताइए टेट्राहेड्रल अगर आप बनाएंगे भी अपनी जगह पर, ऊपर एक, फिर ऊपर एक रखेंगे और 3 साइड्स में 3, टेट्राहेड्रल में कोई अपोजिट पोजीशन नहीं होगी, सारे एक दूसरे को एडजेसेंट होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मैं सपोज यहाँ टेट्रा, अब ए पार्ट है, जब मैंने लिया कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पार्ट 1, इसमें ले लेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सपोज कोई लेते हैं, मैं कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेता हूं m, सपोज m ही लेता हूं। इसमें ये 4 पोजीशंस है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4। कोई पोजीशन इसमें अपोजिट नहीं है। 1 से 2 भी उतना ही नजदीक है, 4 भी उतना ही नजदीक है, और 3 भी उतना नजदीक है, बिकॉज ये 3 साइड्स में है, इसके 3 साइड्स में है और ऊपर एक है। जहां से भी आप ले लेंगे वो सेम आएगा, आपको पता है। सो कोई भी पोजीशन जो कि ट्रांस नहीं होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, याद रहे, और ये क्वेश्चन आता भी है, ऑल पोजीशंस आर सिस। So all positions are cis with respect to each other, are adjacent, cis adjacent with respect to each other. तो इसलिए जब ट्रांस है ही नहीं तो ये आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्या? बताइए जरा, कोई अपोजिट पोजीशन ही नहीं है। अगर मान लीजिए सिमिलर रीजन आप कहीं पर भी डालेंगे वो तो साथ साथ ही रहेंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। याद रहे बेटा, ये ऐसा है, ये अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म, ये टेट्राहेड्रल के फॉर्म में बना रहा हूं, इट इज लाइक दिस। ऑल पोजीशंस जो इसमें होती है दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर। सारी पोजीशंस, ये टेट्राहेड्रल है तो सारी पोजीशन जो कॉर्नर्स है वो एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक है। जो अगर 1 पोजीशन में यहाँ लिया, यहाँ सपोज 2 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, 4, जितना 1 से 2 दूरी पर है उतना ही 1 से 4 भी है, और उतना ही 1 से क्या होगा, 1 नहीं, सेंटर सॉरी, 1 m से 1 जितना दूर है उतना ही m से 2 है, उतना ही m से 3 है, उतना ही m से 4 है। 1 2 2 3 3 4 4 1, they are all adjacent positions. So all positions are adjacent with respect to each other. Hence शाबाश, कोई बता सकता है? Geometrical isomerism is not possible in tetrahedral complexes. ये क्वेश्चन आता भी है, बताइए आइसोमेरिज्म इज नो, अलग क्वेश्चन आ सकता है, सीबीएसई में नॉर्मली आता है कि बताइए व्हाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन, इज नॉट पॉसिबल, हेंस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्वेश्चन आता है, बताइए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल क्यों नहीं है? राइट, आप कहेंगे बिकॉज ऑल पोजीशंस आर एडजेसेंट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, हेंस देयर इज नो ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांस तो बनेगा नहीं, जब ट्रांस नहीं बनेगा तो
geometrical isomerism is not possible. Right? समझ आया? So हम एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ये आपको याद रखना है. इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 tetrahedral complexes do not show geometrical isomerism. Right? अब इसके बाद है tetrahedral complex में कौन सा? बी पार्ट, सेकंड पार्ट, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. यस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो अभी मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको बताई थी, इसमें तो होती है. क्योंकि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होता है, अगर मैं स्क्वायर प्लेनर यहां बनाऊं तो आपको पता चलेगा इसमें ट्रांसपोजिशन भी है और इसमें मेटल इन द सेंटर, एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन और चार, 1 2 3 एंड 4. तो अगर मैं पोजीशंस को डिफाइन कर लूं, 1 और 2 सिस पोजीशंस है, 2 एंड 3 सिस पोजीशंस है, ठीक है ना, 3 और 4 सिस पोजीशन है, 4 एंड 1 सिस पोजीशन, दीज आर सिस पोजीशंस. अगर इन पर होगा सिमिलर तो सिस है. 1 एंड 3 ट्रांसपोजिशन है, 2 एंड 4 ट्रांसपोजिशन है, अपोजिट पोजीशन है. तो इसमें अगर इन पोजीशंस पर होगा तो ट्रांस, अगर इन पोजीशंस पर होगा सिस. सो यस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस है उनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है. अब इसमें दो टाइप्स होते हैं. देखो बेटा, ये भी कभी कभी आ सकता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूँ. दैट इज, एक टाइप है Ma2B2 टाइप. कभी ये आ भी सकता है. एम इज सेंट्रल मेटल एटम, ये आपको पता है. ए होता है न्यूट्रल लिजेंड, बी होता है एनायनिक लिजेंड जनरल. सो सेंट्रल एटम के साथ दो न्यूट्रल लिजेंड और दो एनायनिक लिजेंड्स, ये टाइप है. ये एक एग्जांपल इससे अभी बताया था ना मैंने, कॉपर NH3 होल ट्वाइस Cl2. कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जरा Ma2B2 टाइप में दिखा दीजिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आप तो फटाफट दिखाएंगे. Ma2B2 में अभी मैंने बताया था, बिल्कुल इजी है. पहले स्क्वायर प्लेनर दो बनाने हैं, बीच में एंड बना के रख लिया, कॉपर इन द सेंटर, और चारों साइड में कॉपर सेंटर में बनाइए, और एक में सिस और एक में ट्रांस रख लीजिए. यहां पर सपोज Cl रखा, सिस, अमोनिया अमोनिया, ऑटोमेटिकली सिस आ जाएगा. और यहाँ Cl और अपोजिट रखा, अमोनिया माइनस सिस. ये सिस आइसोमर है और दूसरा ट्रांस आइसोमर है. ये एग्जाम्पल में, these examples will be, I'll be continuing it in the next